یا رسول اللہ رسالت یا رسول اللہ کھول کے دونوں ہاتھ بلند نعرہ حیدری یا علی نعرہ حیدری یا علی زندہ باد حسینیت زندہ باد یزیدیت مرد آباد یزیدیت مرد آباد محمد آل محمد دشمن تلانا بے شمار محمد آل محمد دشمن تلانا بے شمار آل محمد بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد سیدادی کی ذات پہ عزت عظمت کی آواز بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد ماشاءاللہ ماشاءاللہ سامعین کرام قدر جب کچھ بھی نہیں تھا کچھ سے مراد کچھ بھی نہیں تھا ہاں زمین تھی نہ آسمان تھا نہ ہوا تھی نہ جن تھے نہ فرشتے نہ جبرائی نہ میکئی نہ اسرفی نہ ازرئی نہ خاموشی نہ حیرانی نہ پریشانی کچھ بھی نہیں تھا اللہ تھا بے شک ماشاءاللہ نے خود ہی کہہ دیا کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ ہوں سبحان اللہ بے شک اگر کچھ ہستیوں نے ظاہر کیا ہے آہا واہ 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 کتاب کا نام مانی الاخبار ہاں ایک صدوق بہت بڑے علامہ ان کی کتاب ہے مانی الاخبار دوسری کتاب ہے اجتماع الدین اتمام النعمہ واہ یہ واہ بھی شیخ صدوق کی کتاب ہے تیسری کتاب ہے ہمالیہ شیخ صدوق یہ بھی شیخ صدوق کی کتاب ہے چوتھی کتاب ہے پروادر ملکوت خمینی کی چار کتابیں گواہ ہیں کہ اللہ نے اپنے میں سے کسی اپنے جیسے کو جدا کیا آئے ہوئے 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 واہ 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 نام اس کا بھی آئے ہائے ہائے جی نام اس کا بھی نہیں ہاں ذات اس کی بھی نہیں ذات اس کی بھی نہیں تعارف اس کا بھی نہیں تعارف اس کا بھی نہیں بس جس سے جدا ہوا جو احد ہے اس نے کہا یا حبیبی تعارف کا اللہ منی و منی و تعارف دیکھو تیسرا تو کوئی ہے نہیں بس راز رہ جائے تو میرا تعارف کروا میں تیرا تعارف کرا یا علی حق ولی واہ 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 اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ تعارف للہ ہاں جاؤ ہم نے تمہیں اللہ بنا دیا اللہ وہ ہے جو دنیا بناتے ہیں یہ وہ ہے جو اللہ بنا رہے ہیں ہائے 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 واہ 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 راز ہے کہ وہ کون ہے اس نے کہا کوئی اور حسرت کہتا ہے حسرت ہی پھر دنیا کاش دنیا ہو زمین ہو شجر ہو طول ہو اور میں بناؤں لیکن انا لا یدائے بے یدائے میرے تو ہاتھ ہی نہیں ہائے ہائے کہا تو پریشان کیوں ہوتا ہے ہاذا یدائے یہ ہاتھ تیرے ہی ہے آدم میں بناؤں گا دعوت تم کرنا آہا میں بناؤں گا دعوت تو کرنا آہا نہیں میں بناؤں گا دعوت تم کرنا بس یہ بناتا رہا اللہ نے کہا میں نے بنایا لیکن اس نے سے دیکھ کے کہا یہ میرا کتنا عزیز ہے بناتا خود ہے اور یہ میرے کھاتے میں ڈال رہا ہے یہ میرا کتنا عزیز ہے اس نے فکرہ کہا کہتا ہے اچھا تم نے میرے لیے اتنا کچھ کیا جاؤ دنیا میں واجب ہے دیکھیں گے تمہیں عبادت میری ہوگی سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس نے کہا کوئی اور حسرت کا ان المحمود ہے کوئی مجھے محمود مانے تو بننے والے نے کہا انت المحمود محمود ہو ماشاءاللہ بڑا خوش ہوا اس نے کہا انت محمد سبحان بس اللہ میں نہیں کہتا اس نے پھر کسی کو جدا کیا کہتا ہے تو میرا تعارف کروا میں تیرا تعارف کرواتا ہوں بننے والے نے کہا انت اعلیٰ تو اعلیٰ نے کہا انت علی اس نے پھر کسی کو جدا کیا کہتا ہے تو میرا تعارف کروا میں تیرا تعارف کرواتا ہوں بننے والے نے کہا انت المحسن محسن نے کہا انت الحسن اس نے پھر کسی کو جدا کیا کہتا ہے تو میرا تعارف کروا میں تیرا تعارف کرواتا ہوں بننے والے نے کہا انت قدیم الحسن قدیم الحسن نے کہا انت الحسین سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ پھر کسی کو جدا کیا کہتا ہے تو میرا تعارف کروا میں تیرا تعارف کرواتا ہوں بننے والے نے کہا انت الفاتح سمواہ تو فاتح سمواہ نے کہا انت ہی فاطمہ اب آدم بنے اللہ ان پانچ کا آدم کو تعارف کروا رہا ہے آدم سن ان للہ اللہ ہی ان کی وجہ سے واہ 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 یہ مجھے تسلیم نہ کرتے میں اللہ نہ ہوتا تو آدم دونوں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے رب جلیل ان کا تعارف کروا دے اب اللہ ان پانچ کا آدم کو تعارف کروا رہا ہے کہتا ہے آدم سن ان المحمود حاذا محمد سبحان اللہ ان اعلی حاذا علی سبحان اللہ حاذا الحسن سبحان اللہ قدیم الحسن حاذا حسین سبحان اللہ سموا حاذا ہی فاطمہ اللہم صلی علی محمد وعلی رب محمد جلیل میں کہتا ہوں تو ان کا تعارف کروا تو اپنا تعارف کروا حیدری یا علی یا علی تو ان کا تعارف کروا واہ 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 ہاں اللہ کہتا ہے آدم
नहीं, हाँ हाँ ये बिखर जाए तो 5 होते हैं, हाँ। सिमट जुट जाए तो ये वाह 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 सरकार की हदीस है, अव्वलो ना मोहम्मद, वाह सनम वाह 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 ना मोहम्मद, कुल्लो ना मोहम्मद। हाँ माशाल्लाह इसका तर्जुमा मैं कर देता हूं, अब लोग इसमें कहते हैं 12 के 12 मोहम्मद, सुभान अल्लाह 14 के 14 मोहम्मद। मोहम्मद बेशक 12 का लफ्ज है ही नहीं, 14 का लफ्ज वो निकाले जो इसमें 14 की अरबी दिखाए। हाँ सरकार ने फरमाया अव्वलो ना मोहम्मद, हमारा पहला मोहम्मद, हाँ आखिरो ना मोहम्मद, हमारा आखिरी मोहम्मद, औसतो ना मोहम्मद, दरमियान वाला मोहम्मद, कुल्लो ना मोहम्मद, सुभान अल्लाह सारे के सारे मोहम्मद, आहा। मोहम्मद मोहम्मद, अली मोहम्मद, सुभान हसन अल्लाह, मोहम्मद, माशाअल्लाह, हुसैन मोहम्मद, माशाअल्लाह, इरशाद मोहम्मद, माशाअल्लाह, जाकिर मोहम्मद, जी। जाफर सादिक मोहम्मद, या। हसन मोहम्मद, रज़ा मोहम्मद, तकी हाँ। मोहम्मद, नकी मोहम्मद, आहा। अस्करी वाह, वाह, मोहम्मद, वाह, वाह, मस्जिद में वाह। बैठा आखिरी बादशाह मोहम्मद, वाह वाह नारे हैदरी में बैठा आखिरी बादशाह मोहम्मद। हाँ। यहाँ से नहीं, शियत इससे आगे शुरू होती है। अब्बास मोहम्मद, कासिम मोहम्मद, हाँ। अकबर मोहम्मद, अली असगर मोहम्मद, कुल्लो ना मोहम्मद। एक बंदा फरजांद बतूल के पास आया और आकर कहता है मौला ये जो आपके नाना की हदीस है, अव्वलो ना मोहम्मद, हाँ। आखिरो ना मोहम्मद, औसतो ना मोहम्मद, कुल्लो ना मोहम्मद, मौला ये हदीस सच है? मौला ने कहा हाँ ये हदीस सच है। कहने लगा मौला अगर ये हदीस सच है आप में कोई अली क्यों है, कोई हाँ। हसन क्यों है, कोई हुसैन क्यों है? मौला ने कहा ला कुरान मेरे हाथ पे रख। कुरान हाथ पे है। मौला ने कहा अब ये क्या है? कहने लगा मौला ये कुरान है। मौला ने फिर पूछा ये क्या है? कहने लगा मौला ये कुरान है। मौला ने कहा अगर ये कुरान है इसमें कोई मुजम्मिल क्यों है, कोई नूह क्यों है, कोई इब्राहिम क्यों है? कहने लगा मौला ये बिखर जाए तो सूरतें होती हैं, सिमट जाए तो कुरान होता है, बिखर जाए तो सूरतें होती हैं, सिमट जाए तो कुरान होता है। मौला ने कहा इसी तरह हम बिखर जाए तो मोहम्मद होते हैं, सिमट जाए तो आले मोहम्मद। नारे हैदरी हाँ हिंदुओं में एक ज्योतिषी होता है, हाँ ज्योतिषी उसे कहते हैं जो मंदिर में रहता है, भगवान की पूजा करता है, उसका भगत बनकर जियो साक्षी करता है, लेकिन वो शादी नहीं करता। हम्म ऐसे ही मुसलमानों में कलंदर है, जियो कलंदर भी शादी नहीं करता। हाँ अगर कलंदर शादी कर ले तो कलंदरी छीन ली जाएगी। हाँ ईसाइयों में, क्रिश्चियन में फादर और मदर होते हैं, अगर वो भी शादी नहीं करते, अगर शादी कर लें हाँ फादर फादर नहीं रहेगा, मदर मदर नहीं रहेगी। यहूदियों में राहब होता है हाँ और आता है मोहम्मद मुस्तफा के पास, और जिस जिस नबी ने नबूवत का दावा किया उसी के पास गया। मोहम्मद मुस्तफा के पास आया, कहा औलाद चाहिए, कहा भाई तुम कौन हो? कहा राहब। उसने कहा भाई पहले शादी तो कर लो। हाँ। शादी है नहीं और औलाद लेने आ गया। और ऐसे ही मायूस होकर चला, रास्ते में हसनैन मिले जियो और कहा राहब क्या कहाँ जा रहा है, रोता हुआ क्यों जा रहा है? कहता है मोहम्मद मुस्तफा के पास गया था औलाद लेने, कहा तेरे नसीब में नहीं है। कहा चलो आओ जा हम तुम्हें औलाद लेकर देते। हसन हुसैन ने साथ लिया, चले गए दरबार में, सामने मोहम्मद मुस्तफा तख्त पर बैठे और ये नहीं कहा नाना, कहा ए जमाने के रसूल औलाद लेने आया था। कहा हुसैन इसकी किस्मत में नहीं है। कहा किस्मत में होती तो यहाँ क्या लेने आता, इसे घर बैठे मिल जाती। कहा चलो ऐसा करो तुम दुआ मांगो अल्लाह दे देगा। इधर मोहम्मद मौला हसन ने कहा कुन, अल्लाह ने मोहम्मद मौला हुसैन ने कहा एक, अल्लाह ने कहा कुन, बच्चा बना, मस्जिद नबवी में दाखिल हुआ। इधर मौला हुसैन ने कहा दो, अल्लाह ने कहा कुन, 7 बच्चे दिए मौला हुसैन ने। और ये 7 बच्चे जब दिए, बच्चे मस्जिद नबवी में दाखिल हुए, राहब दौड़ता हुआ आके मौला हुसैन के कदमों पर गिर कर कहता है मौला बस। और मौला हुसैन कहते हैं राहब आज तूने हमारी औलियत को रोक दिया, आज अगर हम कयामत तक गिनते जाते उसने कहना था कुन कुन कुन। बस अमीन कराम कदर फजाइल जितना भी पढ़ा जाए, लेकिन इब्तिदा मेन मकसद ही मसाइब है। इमाम तकी से कोई शख्स आके पूछता है मौला पहाड़ से वजनी मुसीबत कैसे टल सकते हैं? मौला ने कहा टल सकती है। कहते हैं मौला कैसे टल सकती है? मौला ने कहा अपने घर में एक सा फर्श अज़ा मातम बिछाओ, जैसे बीबी ज़हरा अलैहिस्सलाम की कनीज़ है ना बीबी फिज़ा, वैसे ही बीबी ज़ैनब अलैहिस्सलाम की कनीज़ है शीरी। ये जब भी बीबी ज़ैनब अलैहिस्सलाम के पाँव धोती थी ये एक ही फिक्र कहती थी, बीबी मेरे यहाँ दुआ करे, मेरे यहाँ कोई बेटी हो मैं उसे अली मजलिस से बैठा उसे अली अकबर की कनीज़ी में पेश करूं। बीबी ज़ैनब आलिया ने रात की तारीखी में मौला हुसैन को बुलाया,
कहा भाई हम मालिक शरीयत हैं, अल्लाह ने कुछ हमारे ऊपर कानून मुनासिब किए हैं, ये जो अपनी शीरी है इसके लिए कोई रिश्ता तलाश करो ना। मौला ने कहा हाँ मेरा एक सहाबी है, विलायती भी है, मोमिन भी है, अजीज नाम है उसका, अस्कलान का रहने वाला, अजीज अस्कलानी हम उसे बुलाते हैं। मौला ने कहा हाँ, ये बीबी कहते हाँ ये ठीक है। तारीख में कोई हक महर नहीं इस बीबी का, कोई हक महर नहीं, लेकिन मौला हुसैन ने इसे इतना जहेज दिया, 9 ऊँट दिए जिसमें सिर्फ सोना ही सोना था, और मौला अब्बास ने इसे 11 ऊँट दिए जिसमें सिर्फ चादरें ही चादरें। पूछा मौला इतनी सारी चादरें? कहता है तो मेरी ज़ैनब की कनीज, अल्लाह जाने कभी सर पे चादर हो ना हो, अब्बास की गैरत नहीं गवारा करती कि ज़ैनब की कनीज और सर पे चादर। ये बीबी आती है मौला हुसैन को, कहते हैं मौला आप मालिक शरीयत है, मैं कुछ शराइत रख सकती हूँ? मौला ने कहा हाँ बोलो श्री क्या बात। कहते इस अजीज को कहे साल में एक दफा मुझे मदीने में ज़ैनब से मिलवाने जरूर है। मौला ने कहा हाँ ठीक है। कहता है मौला एक और है। मौला ने कहा क्या? कहते हैं जब अकबर की शादी करोगे बारात मेरे सहन में उतरेगी। मौला चुप हो गए। कहते ये हाथ जोड़ के कहते हैं मौला कोई गलती हो गई? मौला ने कहा नहीं शीरी गलती कोई नहीं हुई, क्या बारातियों का इस्तकबाल कर लोगी? कहती हाँ मौला मैं करूंगी। ये बीबी गई घर, साल गुजरा, वापस आई से मदीना के मेन चौराहे पे इमाम हुसैन नजर आते हैं इस्तकबाल के लिए। जब कुछ दिन रही वापस जाने लगी तो मौला ने इसे बेहतरीन तरीके से रुखसत किया। 2 साल तो ऐसा ही होता रहा। तीसरा साल जब आया ये बीबी आती है, इसे मदीना के मेन चौराहे पे इमाम हुसैन नजर नहीं आते। वापस जाने लगी तो मौला ने विदा भी नहीं किया। ये हाथ जोड़ के कहती है मौला कोई गलती हो गई? मौला ने कहा नहीं शीरी गलती कोई नहीं हुई, अभी कुछ परेशानियां तो ऐसा करना अगले साल नहीं आना। ये हाथ जोड़ कर कहते हैं मौला कोई गलती हो गई? मौला ने कहा नहीं अगले साल मैं अकबर की बारात लेकर अगले साल मैं अकबर की बारात लेकर आ रहा हूँ। ये बीबी घर गई, खुशी से घर को सजाती, हर कमरे में तख्त लगवाती है। यहाँ अब्बास बैठेंगे, यहाँ ओनो मोहम्मद बैठेंगे, यहाँ जैनब बैठेगी, यहाँ कलसूम बैठेगी, यहाँ अकबर बैठेगा, यहाँ अकबर की दुल्हन बैठेगी। साल का वो दिन आया जिस दिन बारात आनी थी। ये बीबी घर की छत के ऊपर चढ़ के कुरान की तिलावत करती है। अचानक अजीज आ जाता है, कहते हैं शीरी नीचे उतरो। शीरी नीचे उतरते कहते क्या हुआ? कहते मैं कुछ कैदियों का खिलाऊं देख कर आया हूँ। ऐसा नहीं लगता कैदी है, लेकिन शीरी में एक और देख कर आया हूँ। 24 साल का जवान है, आंखों से खून रोता, आंखों से पानी नहीं खून रोता है। शीरी में एक और देख कर आया हूँ, एक 4 साल की बच्ची है जिसके रुखसार नीले हैं। वो रो रो कर कहती है बाबा तेरी बहनों के बाल बड़े हैं, बाबा मेरे बाल बड़े होते मैं चेहरा छुपा लेती, आओ शीरी देखने चले। शीरी कहते नहीं मेरी आकाज़ादी बोलती थी जब भी तुम्हारे यहाँ कोई कैदियों का खिलाऊं आए तुम उसका तमाशा देखने नहीं जाना। कहते नहीं शीरी हम तमाशा देखने नहीं जा रहे, उनकी मस्तूरात हैं, वो बेरिदा हैं, वो रो रो कर चादरें मांग रही हैं। हमारे आका अब्बास ने हमें चादरें दी थी, क्यों हम उन्हें वो चादरें ना देकर आए? शीरी अंदर जाते वापस जाते कहते अजीज मस्तूरात की तादाद कितनी है? कहता है कुल मिला के 28 मस्तूरात है। इन्होंने पानी के कूजे लिए, चादरें ली, बाजार की तरफ चले। बीबी ज़ैनब आलिया ने शीरी को आते हुए देखा, कहा आयना आयना अम्मा फिजा, अम्मा फिजा कहा जी आकाज़ादी। वो सामने शीरी आ रही है, ये कुछ सवाल करेगी, मैं जानती हूँ ये ज़ैनब की कनीज है, ये कुछ सवाल करेगी, अम्मा जवाब तुमने देने हैं, मैं बोलूंगी तो ये लहजा पहचान जाएगी। शीरी करीब आती है, इसने पहला सवाल किया कहाँ के रहने वाले हो? बीबी फिजा ने लहजा चेंज किया, धीमे लहजे से कहती है मदीना। इसने दूसरा सवाल किया, कहते हैं मदीना के किस मोहल्ले से हो? फिजा ने लहजा चेंज किया, धीमे लहजे से कहते हैं कमरे बनी हाशिम। जब कमरे बनी हाशिम का नाम आया शीरी का दिल बैठ गया, इसने सर से चादर उतारी और रो कर कहती है मैं भी उस मोहल्ले में कनीज रही हूँ, सच सच बताओ तुम कौन हो? मैं भी उस मोहल्ले में कनीज रही हूँ। बीबी फिजा की आवाज है ये सवाल अब इस बीबी से कर। ये शीरी बीबी ज़ैनब आलिया के पास आती है, कहती है सच सच बताओ तुम कौन हो? मैं भी उस मोहल्ले में कनीज रही हूँ। ये कहती है बीबी ज़ैनब आलिया ने कहा अच्छा तू बता तू किसकी कनीज रही है? जब कहा ना तू किसकी कनीज रही है, शीरी रो कर कहती है मैं जिसकी कनीज रही हूँ उसका नाम इस बाजार में नहीं लिया जा सकता। बीबी इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा की मालकिन है। अच्छा बीबी ज़ैनब आलिया ने कहा उसके घर में कोई मर्द तो होगा? कहती है उसके 3 भाई हैं,
दो भाई उसके जन्नत के सरदार हैं। एक भाई उसका बाबुल हवा है तो जनाब अलमाली सरकार हजरत अब्बास है। शेर जैसा जिगर है उसका, वो बीबी उसके पैरों में सोती है, वो बीबी अली की बेटी है। कहा ना मुर्शिद अली की बेटी है। अली की बेटी को गाशा शीरी ने चेहरे से बाल हटाए ताकि पानी का छलकाव करूं। इससे बीबी ज़ैनब आलिया का चेहरा नजर आया, रो रो कर कहते या अली मेरी ज़ैनब उजड़ गई, हसन मेरी ज़ैनब उजड़ गई, आए ना